होने वाली है। सुवेन फार्मा के मैनेजमेंट से हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वेंकट जस्ती साहब, जिनसे बातचीत होगी कैस्पर फार्मा के अधिग्रहण के बाद ग्रोथ आउटलुक क्या है, साथ ही साथ विस्तार योजना पर भी चर्चा करेंगे मैनेजमेंट से। लेकिन आपको कंपनी के बारे में सबसे पहले कुछ जानकारी दे देते हैं। तो सुवेन फार्मा जो है 2018 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। फरवरी 2019 में सुवेन लाइफ साइंसेज का डीमर्जर हुआ। सुवेन फार्मा का क्रैम्स बिजनेस पर फोकस है। सुवेन लाइफ का सीएनएस डिसऑर्डर रिसर्च पर भी फोकस काफी बड़ा है। वेंकट जस्ती साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर आपका। सबसे पहले तो जो कैस्पर फार्मा का आपने एक्विजिशन किया है उसी के बारे में बात करते हैं। अब जब ये पूरा हो गया है तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं, कितना बड़ा मार्केट शेयर हो जाएगा जो 6 प्रोडक्ट्स आपने फाइल किए हैं उनका? Good afternoon, everybody. Thanks for calling in. Yes, Casper Pharma acquisition has happened in April, and it is yet to undergo the US FDA inspection. We expect that to happen within the next 2 to 3 months. And we, as you rightly said, we have filed 6 products already, and we have another 9 products under preparation. And as you know, we are not too big in the formulations, but this is a leverage exercise, and this has a long-term contracts with the one of the distribution company in the USA, that's Rising Pharma, for 7 years. We supply them on a profit-sharing basis, cost plus profit-sharing basis, and we expect within the next 3 to 4 years to go to up to 300 to 400 crores turnover for the formulations from Suven. किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल आप देख रहे हैं इन मॉलिक्यूल्स का? जब ये प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा उसके बाद किस तरह रेवेन्यू बढ़ेगा? In the beginning, it will not be that much, sir, because as I said, we don't go after the blockbuster drugs. We go after the only niche, small value molecules where not much competition is there. The volumes of these drugs are about 2 to 3 million only sales. And mainly it is a profit sharing. That's where we benefit out of it. And as I said, it is a leverage exercise. फेयर इनफ। फॉर्मुलेशंस की बात करें तो कितने ANDAs आपने अभी तक फाइल कर दिए हैं और कितने अप्रूव हो चुके हैं और लॉन्च की स्टेज पर हैं आप? We have filed about 11 and 6 are approved already. And another total in the Suven pipeline will be another 20 are in various phases of what we call filing, and some of them 2 to 3, if not 4, will be approved during this year, calendar year. That's what our hope. And every year we'll be adding about 10 products to this pipeline. ओके, आपके क्रैम्स बिजनेस की बात करेंगे सर, तो यहाँ पर हमने देखा कि इस क्वार्टर में ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। वेरी हेल्दी ग्रोथ वी हैव सीन इन दिस क्वार्टर। बट आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ है ये आने वाले क्वार्टर्स में सस्टेन कर पाएगी कुछ और समय तक? And the pure CRAMS and the pharmaceutical CRAMS, I think we expect, yes, we can sustain for next 2 quarters. And on the CRAMS for the agrochemicals will be flat growth. It will not be, the same as last year. That's the way as of now, because our visibility is only 6 months, so we cannot give you any more guidance more than that. Okay, one last question about inflationary pressures on raw material prices. हमने देखा कि raw material prices जो है वो बढ़े हैं बहुत ज़्यादा। किस तरह का इम्पैक्ट आपके मार्जिन पर पड़ा है और आगे किस तरह का आउटलुक है आपका? Yes, the prices are going up on the raw material. Sometimes the availability is also less. Comparative to last quarter, this quarter is a little bit better, but it will still have an impact of 2 to 3% on the bottom line. ओके मिस्टर जस्ती, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। सुवेन फार्मा के टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर बताते हुए कंपनी ने जो नया एक्विजिशन किया है उससे किस तरह का फ़ायदा होगा, और रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने का तो इम्पैक्ट है ही। लेकिन स्टॉप में आपको क्या करना चाहिए? आज हम देख रहे हैं कि चलते हुए बाजार में भी करीब आधा % नीचे 473 के आसपास ट्रेड कर रहा है। शेयर इंडिया के रवि सिंह जुड़ गए हैं मेरे साथ। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुवेन फार्मा क्या व्यू बन रहा है फिलहाल?
देखिए, इस समय फार्मा सेक्टर के पूरे ओवरऑल सेक्टर को समझे तो ऊपरी लेवल से सब में गिरावट देखने को मिली है। और सुवन फार्मा जिस तरीके से डेली चार्ट्स पर अगर आप देखते हैं तो 420 और 425 के पास एक सपोर्ट ले रहा है, पुल बैक भी ले रहा है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर से इसको बहुत ज्यादा खराब नहीं बोलेंगे और ये बोल सकते हैं कि एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन बात करें जो फंडामेंटल के, जिस हिसाब से आपने क्लियर कट पूछा, मर्जर का देखिए फायदा है और आगे जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसको लेकर के एक इम्पैक्ट जरूर है। लेकिन जो ग्रोथ यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिला 19, 20, 21, 22 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वो काफी स्ट्रांग रही कंपेयर टू अदर जो कॉम्पिटिटर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट का इम्पैक्ट है जिसकी वजह से इसमें एक थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिली है। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो इस समय जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बन रहा है 26.5 के पीई पे 12,160 करोड़ का मार्केट कैप पे, इन्वेस्टमेंट पे पॉइंट ऑफ व्यू से मिड कैप के हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म पे एक बार 580 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप लंबा अगर ट्रेंड लेते हैं, लंबी इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, तो आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए। मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो वीक है, इस वजह से आपको एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन 400 के स्टॉप लॉस से, 420 के स्टॉप लॉस से थोड़ा लोअर लेवल पे एंट्री करें 460 और 440 के बीच में, तो अप साइड में 580 तक के लेवल आपको मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी अट्रैक्शन दे सकते हैं और रिटर्न भी यहाँ पर आपको अच्छे बन सकते हैं। स्ट्रांग फंडामेंटल हैं इस कंपनी के यहाँ पर। चलिए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, आपको नजरिया रखना पड़ेगा लंबे समय का। कुछ गिरावट आने दीजिए। यहाँ पर 420 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 440 460 के आसपास एंट्री करेंगे तो आपको 580 तक के टारगेट मिल सकते हैं। नजरिया लंबा होना चाहिए। रवि की क्लियर राय। बहुत शुक्रिया रवि, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए।